Good morning. I am P.S. Jha, chemistry teacher of Taxila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to start the discussion of questions of chapter Acid, Base and Salt of class 10. As we have already completed the all topic of this chapter, and now we will discuss some questions and their answer. So, the one question of page number 22 is, why should curd and salt substance not kept in brass and copper vessels? जितने भी कर्ड या सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रास या कॉपर वेसल के अंदर हम क्यों नहीं स्टोर करके रखते हैं? इसका रीजन ये होता है, जनरली कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर. They have some properties of acids. And we know that when acid dissolve in a metals, they produce hydrogen gas with the formation of salt. And this salt form are generally harmful for our health and food material. So it is not a store salt or curd in a copper vessel or brass vessels. Take one example. Suppose one container made of zinc, or you can say copper, and curd dissolve containing H2SO4. They will form copper sulfate plus hydrogen, and this copper sulfate generally salt in nature, and this is hydrogen gas. This hydrogen gas evolve out, and the remaining portion left behind is copper sulfate, which is salt, and this salt is harmful for the food and our health. So it is not advisable to store a curd and salt substance in copper and brass metal. Next question of the same page of 22 is, which gas is usually liberated when an acid react with metal, and how will you test for the presence of this gas? क्वेश्चन ये है कि कौन सा गैस जनरली लिबरेट होता है जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, और उस गैस की हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये हमारा डिटेक्ट हो रहा है, मतलब लिबरेट हो रहा है. सो जनरली an acid react with metals, one gas liberated, that is hydrogen, with the formation of salt. For example, Zn, which is metal, react with acid HCl, hydrochloric acids. They will produce ZnCl2 plus H2. This is the salt, and this is hydrogen gas. Another Cu react with H2SO4, they will form CuSO4 plus H2. So in both cases, in this metals are zinc and copper, and the acids are HCl and H2SO4. In both cases, the common product is H2. So when any acid react with metal, they generally produce hydrogen gas with the formation of salt. फर्स्ट वाले केस में हमारा सॉल्ट कौन सा बन रहा है? जिंक क्लोराइड ZnCl2, एंड इन सेकेंड केस प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? कॉपर सल्फेट. बट इन दोनों केस में जो कॉमन है वो H2 गैस है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है? हाइड्रोजन गैस. अब बात है कि इन हाइड्रोजन गैस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे बताएंगे कि हमारा हाइड्रोजन गैस है? तो होता क्या है, दिस हाइड्रोजन गैस पास थ्रू अ सोप सॉल्यूशन. जब इन गैस को हम सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो बबल्स क्रिएट होंगे किसके? सोप के. एंड दिस बबल्स जनरली कंटेन हाइड्रोजन गैस. एंड व्हेन अ कैंडल ब्रॉट नियर अबाउट दिस बबल्स, अ जनरल साउंड प्रोड्यूस, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस. इसका मतलब क्या हुआ? और वो जो पॉप साउंड होता है जनरली किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है.
तो इससे पता चल जाता है कि जो गैस इवॉल्व है वो कौन सा हमारे हाइड्रोजन गैस है। ओके, क्या हुआ, जो भी हाइड्रोजन गैस है उसको हम किससे पास कराएंगे, सोप सॉल्यूशन से। एंड सोप सॉल्यूशन पास कराने पे जनरली दे प्रोड्यूस बबल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन अ कैंडल brought near about this bubbles, a sound of pop is created, and this pop sound generally of hydrogen gas। तो इससे पता चल जाता है कि वो गैस कौन सा हमारा है, हाइड्रोजन गैस। ओके, another question of same page, that is a metal compound A react with dilute HCl to produce effervescence, and the gas evolved extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation if one of the product formed is calcium chloride। क्वेश्चन ये है कि एक कोई मेटल कंपाउंड्स है जो कि डायलूट HCl से रिएक्शन करने के बाद इफरविसेंस आ रहा है, मतलब धुएं टाइप के निकल रहे हैं, और वो जो गैस निकल रहे हैं वो एक्सटिंग्विशर्स का काम कर रहे हैं, मतलब आग बुझाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और बर्निंग कैंडल। तो इसके लिए राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें जनरली क्या हुआ कि दो चीज हमें पता चल गया, एक तो पता चल गया कि हमारा क्या है, HCl है, और दूसरा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और एक चीज और पता चला, इफरविसेंस किसका आ रहा है, जो कि बर्निंग कैंडल काम आ रहा है, CO2। CO2 ऐसे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो CO2 बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कैल्शियम के कंपाउंड होंगे जिससे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड CO2 बन रहा है, मतलब जरूर ये कंपाउंड किसका होगा, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सो द अनदर reactant is calcium carbonate, and when this calcium carbonate react with hydrochloric acid, they will produce calcium chloride, CO2 and water। so ये क्या हो गया, this is the balanced chemical equation for the given questions। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि कोई मेटल कंपाउंड्स हैं जो कि डायलूट HCl से रिएक्शन कर रहा है और इफरविसेंस आ रहे हैं, धुएं टाइप की गैस निकल रही है, और वो गैस क्या होता है, बर्निंग कैंडल को बुझाने के लिए क्या होता है, यूज होता है, और उनमें से एक प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या था, हमें उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो कैल्शियम क्लोराइड मतलब एक प्रोडक्ट हमारा क्या, कैल्शियम, और CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो जनरली क्या होगा, कार्बोनेट होगा, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमें दे ही रखा था, दे रिएक्ट विद HCl, तो HCl से रिएक्शन किया तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड H2, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ओके, another question of page 25, the question is, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution where solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? Any substance shows acidic character, it means they produce hydrogen ions in water, and these hydrogen ions combine with water to produce hydronium ions। तो होता क्या है कि जब हम HCl को ब्रेक करते हैं, HCl in aqueous form, they break down into H positive and Cl negative, and this H positive ions react with water to form H3 positive ions, that is hydronium ions। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl and HNO3 generally dissociates into H plus ions, and these H plus ions combine with water to form hydronium ions। इसलिए ये क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। बट इन केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज दे मस्ट कंटेन hydrogen ions, but they do not dissociates into hydrogen ions when dissolved in water। इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट्स ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, और जब वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट्स ही नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, बट HCl एंड HNO3 जनरली क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर शो करने का मेन रीजन ये है बिकॉज दे डिसोसिएट्स इनटू H+ आयंस।
but glucose and alcohol do not dissociates into H plus ions. इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, और HCl and H3 क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं. Another question of page 25, that is, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? जो aqueous solution of acid होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं. तो होता क्या है, द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेनली मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन केस ऑफ मेटल कंडक्टर द चार्ज कैरीज इलेक्ट्रॉन्स, and in case of electrolytic the charge carried is ions. And when any acids, take example HCl, when dissolved in water they produce hydrogen ions and chloride ions. So they generally produce ions, and ions is the source of electricity. इसलिए क्या होता है, ये कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं और क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल H2SO4. When H2SO4 dissolve in water, they produce H plus ions and sulfate ions, and here both ions are produced, cations and anions, and these cations and anions is generally source of electricity or the charge carrier of इलेक्ट्रिसिटी. तो इन केस में जनरली क्या होता है, आयंस जनरेट हो जाते हैं, और आयंस जनरेट होने के कारण क्या होता है, ये जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. तो मेन रीजन यही होता है, व्हेन एनी एसिड डिजॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस नंबर ऑफ आयंस मोर एज कंपेयर टू इनिशियल. तो उस केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या तो इसकी बढ़ जाती है, और क्या कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं. Another question, that is, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? जो dry HCl होते हैं वो dry litmus paper को के कलर को चेंज क्यों नहीं करते? जनरली कलर चेंज तभी होता है when they produce hydrogen ions, and in case of dry means absence of water और absence of aqueous. तो ड्राई HCl के केस में क्या होता है, वहां पे वाटर होता ही नहीं है, और उस केस में हाइड्रोजन आयन जनरेट होने के चांस ही नहीं होते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन चेंज नहीं होगा तो फिर लिटमस पेपर के कोई कलर में चेंज नहीं होगा. इसलिए क्या होता है, मेनली ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ड्राई HCl गैस और ड्राई लिटमस पेपर, देयर इज नो चेंज इन द लिटमस पेपर. तो मेनली रीजन यही होता है कि ड्राई HCl और ड्राई लिटमस पेपर के केस में हाइड्रोजन आयन जनरेट होने के चांस नहीं होते हैं, या हाइड्रोजन आयन जनरेट होते ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन आयन जनरेट नहीं होते हैं तो फिर लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता. अगर वही एक्वस होता तो फिर उसमें क्या होता, चेंज होता, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस हाइड्रोजन आयन जनरली जनरेटेड. तो उस केस में क्या होता है, लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, बट इस केस में लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं होगा. तो मेन रीजन हमारा ये होता है. ओके.